Hello students. Now this is the biology experiment and the experiment number 9, which is from the question number 4, and now we are studying the spot F, which is for the 1 marks. Now we have already done with the 5 spots. Now here this is our 6th spot. Okay. So spot F, which is study of Anatropous ovule and the function of its various parts. It means the flower ovule which is of various types. बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हियर इन द एग्जाम वी हैव टू जस्ट स्टडी अबाउट द एनाट्रोपस एंड द ऑर्थोट्रोपस, एंड हियर ऑल्सो वी हैव ओनली केप्ट द एनाट्रोपस. Now anatropous we are going to learn about the anatropous ovule and the function of its various parts. So what are the various parts of the anatropous ovule and what are their functions? So we are going to study. So here students, these are the 7 points which we have given through the very important through the exam point of view, and these are the various parts which I am going to explain you today. Now here you all know that the flower which is containing ovule. Ovule means the female part. Female part means there will be egg cell. So this egg cell get fused with the pollen grain or the male gamete, and after the pollination, after the fertilization, we get the seed or the fruiting part. Now this is the common thing in the flower. Now here students, we are going to study about the various parts of the ovule. Now you can see this is the diagram of VS of Anatropous ovule. Now this is the VS of Anatropous ovule. Now here you can see the Anatropous ovule is turning to the downward side, which is of 180 degree. So turning to the downward side, so you can see there is a micropylae below, and the chalazal part should be in the upper region. So this chalazal part you can see in the 90 degree angle, and the micropylae which is turning over toward the downward side, which is the micropylae. Now anatropous ovule which is formed in the downward side, okay, and the orthotropous ovule you can give the towards the direction of the sun. So there is a huge difference between the anatropous ovule and the orthotropous ovule. Now here one by one we are going to learn about the parts of the anatropous ovule. Now here student, the ovule in which the micropylae, chalaza and funicles are not in the one straight line, and the integument run parallel to the funicle is called as an anatropous ovule. Now here students, as per given in your handbook, Bal Bharati handbook, you can read the first point, which is the ovule which is containing micropylae. You can see the opening of the ovule which is the micropylae, okay, and micropylae and the chalaza which is in the straight line. माइक्रोपिलाई के स्ट्रेट लाइन में आपको चलाजा दिखता है, माइक्रोपिलाई के ऊपर चलाजा आपको दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन में, एंड देयर इज ऑल्सो फिनिकल्स. फिनिकल्स क्या होता है? फिनिकल्स इज द स्टॉक पार्ट. फिनिकल इज द स्टॉक पार्ट. अब ये जो अनाट्रोफस ओव्यूल जो है स्टूडेंट्स, ये इसका बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. कैसे? एक तो है हेड पार्ट, दूसरा जो है स्टॉक पार्ट, एंड तीसरा पार्ट जो है वो है हाइलम. हाइलम क्या करता है? अटैचमेंट का काम करता है. फुनाकल्स एंड द माइक्रोपिलाई, मतलब जो हेड पार्ट और द स्टॉक पार्ट रहेगा उसके बीच का अटैचमेंट का काम करेगा. नाउ हियर यू कैन सी द इंटेग्यूमेंट्स रन पैरेलल टू द फुनाकल्स इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स है. इंटेग्यूमेंट्स मीन्स द कवरिंग. यहाँ पे जब आप देखते हैं ये जो इंटेग्यूमेंट्स है उसके 2-3 लेयर्स आपको दिखाई देंगे. दैट 2-3 लेयर्स विच इज़ द इंटेग्यूमेंट्स. और वो जो इंटेग्यूमेंट्स है वो पैरेलल किसको है? फिनाकल्स को पैरेलल है. मतलब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है उसमें पोजीशन जो होता है वो ओव्यूल का वो कैसे होता है? जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो किसको पैरेलल्स होते हैं? फिनाकल्स को पैरेलल होते हैं, राइट? Now here with the help of diagram you can understand
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टेड ओव्यूल. इन्वर्टेड मतलब टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स टू द डाउनवर्ड पार्ट, टर्निंग हेड टू द डाउनवर्ड पार्ट, इन्वर्टेड ओव्यूल जिसको बोला जाता है. नाउ इन दिस स्टूडेंट्स द ओव्यूल शोज द टू मेन पार्ट एज अ बॉडी एंड द फ्यूनिकल. जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बोला था कि ओव्यूल जो है वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट इज़ द बॉडी एंड द अनदर वन इज़ द फ्यूनिकल. ये आपको जो एक शेप का जो एक शेप दिख रहा है, शेप नॉट एक सेल, जो आपको एक शेप दिख रहा है वो शेप दैट इज़ द बॉडी पार्ट, एंड जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ द फ्यूनिकल्स. जो फ्यूनिकल्स जो है ये दो पार्ट्स में क्या हुआ है, वो ओव्यूल डिवाइड हुआ है. द बॉडी शोज टू इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बेस ऑफ द ओव्यूल रीचिंग अप टू द टिप ऑफ द ओव्यूल. बेस से लेके टिप ऑफ द ओव्यूल, यू कैन सी द टिप शोज द स्मॉल क्लेफ्ट लेफ्ट बाय टू इंटेग्यूमेंट्स कॉल्ड द माइक्रोपिलाई. क्लेफ्ट मीन्स स्टूडेंट्स माइक्रोपिलाई आपको दिख रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, जो छोटा सा गैप है दैट इज दैट गैप विच वी कॉल्ड इट एज अ क्लेफ्ट. वो जो क्लेफ्ट जो है दैट इज अ माइक्रोपिलाई. इंटेग्यूमेंट्स के बीच वाला गैप जो है वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, माइक्रोपिलाई दिखाई देगा. एंड दैट गैप विच शोज द लेफ्ट बाय टू इंटेग्यूमेंट्स कॉल्ड द माइक्रोपिलाई. उसके बाजू में आपको दो इंटेग्यूमेंट्स दिखाई देंगे, उसके बीच वाला जो गैप रहेगा दैट इज द माइक्रोपिलाई. एंड द अपर पार्ट विच इज द चलाजल. ओके, तो ये दोनों जो है एक लाइन में आपको दिखाई देंगे, माइक्रोपिलाई एंड द चलाजल पार्ट. नाउ द इंटेग्यूमेंट एनक्लोज द मास ऑफ फर्टाइल पैरेन्काइमेटस डिप्लॉयड सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस. अब इंटेग्यूमेंट्स क्या कंटेन करता है, न्यूसेलस. न्यूसेलस दैट इज द पैरेन्काइमेटिक डिप्लॉयड सेल्स. ओके, जहाँ पे फर्टाइल मास होता है. जैसे कि हम बोलते हैं ना एंडोस्पर्म, एक एग्जाम्पल लेते हैं. एंडोस्पर्म क्या होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा जो सेल्स होते हैं बच जाते हैं, जैसे कि नारियल पानी. एग्जाम्पल इज़ द कोकोनट वाटर, एंड जिसको एंडोस्पर्म बोला जाता है. कोकोनट वाटर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू गिव फॉर द एंडोस्पर्म. जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर एंड द cream part. Okay, so that the best example which is the coconut. Now here you can see the integument which is also show the fertile parenchymatous diploid cells called nucellus. There is the only fertile cell located more or less in the center of the nucellus, but towards the micropilli end of the ovule. This is called megaspore mother cells. Now जब हम फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में यानी कि कार्पेल पार्ट के बारे में बात करते हैं तब क्या होता है, दैट टाइम द फीमेल ओव्यूल और द फीमेल पार्ट विच वी कॉल्ड इट एज द मेगास्पोर मदर सेल्स. और जब हम मेल पार्ट के बारे में बात करते हैं दैट इज़ द माइक्रोस्पोर सेल्स. तो ये मेगास्पोर मदर सेल मतलब कि बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द माइक्रोस्पोर्स. उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसके लिए उसको मेगास्पोर्स मदर सेल्स बोला जाता है. नाउ हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी देयर आर द सिनर्जिड सेल्स. इन बिटवीन द सिनर्जिड सेल यू कैन सी द एग सेल. ओके, सिनर्जिड सेल आपको दिखाई दे रहे हैं. माइक्रोपिलाई, जब आप माइक्रोपिलाई का जब एंट्री है, क्लेफ्ट है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे उसके ऊपर आपको क्या दिखाई देता है, सिनर्जिड सेल दिखाई देते हैं आजू बाजू में. किसके, एक सेल के आजू बाजू में आपको क्या दिखाई देंगे, सिनर्जिड सेल दिखाई देंगे. ओके, फाइनली डेवलप्स इनटू ओनली वन फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक. फाइनली हमको क्या दिखाई दे रहा है, एम्ब्रियो सैक दिखाई दे रहा है. अब ये एम्ब्रियो सैक में हमको सिनर्जिड सेल्स दिखाई दे रहे हैं. सिनर्जिड सेल्स के बीच में एक सेल दिखाई दे रहा है एंड देयर इज ऑल्सो एंटीपोडल सेल. ओके, एंटीपोडल सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स. नीचे क्या होता है, एक सेल. ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या होता है, एंटीपोडल सेल. अब सिनर्जिड सेल के बीच में क्या होता है, एक सेल. ओके, एक सेल इज सराउंडेड बाय द सिनर्जिड, जो क्या देता है, एक को न्यूट्रिशन एंड जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं वो प्रोवाइड करता रहता है. तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए देयर इज अ सिनर्जिड सेल्स आर प्रेजेंट
एंड देर इज ऑल्सो डेफिनेट न्यूक्लियस विच इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस. सेकेंडरी न्यूक्लियस भी वहाँ पे प्रेजेंट है. जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, यूज होता है स्टूडेंट्स. नाउ हियर यू कैन सी, सो दीज आर you can see the structure of the VS of Anatropous ovule. आप देख सकते हैं ये किसका VS है, वेंट्रिकल सेक्शन ऑफ द Anatropous ovule. अब इस ओव्यूल में आपको दिखाई देगा कि देर इज़ अ चलाजल पार्ट, माइक्रोपिलर पार्ट. हम वापस से स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है. सो फर्स्ट यू विल गोइंग टू स्टडी दैट इज़ अ माइक्रोपिलर. तो माइक्रोपिलर एंड द चलाजल, माइक्रोपिलर एंड द चलाजल. माइक्रोपिलर जो एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है टूवर्ड्स द फ्लोर, मतलब ज़मीन की तरफ क्या होता है, झुका हुआ रहता है. सो दैट इज़ इन द 180 डिग्री. तो 180 डिग्री के इसमें क्या होता है, ज़मीन की तरफ झुका हुआ रहता है. दैट इज़ एनाट्रोपस ओव्यूल, वो उसकी एक खासियत है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, माइक्रोपिलाय और चलाजल. माइक्रोपिलाय नीचे दिखाई देगा और चलाजल पार्ट जो है वो ऊपर दिखाई देगा. ठीक है. अभी यहाँ पे जो इंटेग्यूमेंट्स है वो पैरेलल है. किसको पैरेलल है स्टूडेंट, फ्यूनिकल्स को. इंटेग्यूमेंट्स पैरेलल होते हैं किसको, फ्यूनिकल्स को. और ये जो ओव्यूल के जो बॉडी पार्ट्स जो है, दैट द होल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. दैट इज द फर्स्ट इज द बॉडी एंड द अनदर वन इज द फ्यूनिकल्स. फ्यूनिकल विच इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ स्टॉक पार्ट एंड द अपर पार्ट विच इज द हेड पार्ट and which is the both the part which is joining in between which is hilum. Okay, so hilum is the main part which is joining the funicle and the body part. Now you can understand with the help of the diagram. There is a embryo sac. Students, अब embryo sac में क्या क्या आता है, embryo sac में आता है एंटीपोडल सेल. ऊपर के पार्ट में क्या आएंगे, 3 एंटीपोडल सेल आएंगे. नीचे 2 सिनर्जिड सेल्स आएंगे और सिनर्जिड सेल के बीच में क्या आएगा, एक सेल. ओके. और यहाँ पे आपको 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस भी दिखाई देंगे, डेफिनेट न्यूक्लियस जिसको बोला गया है. एंड देर इज़ अ न्यूसेलस पार्ट. किसमें, इंटेग्यूमेंट के बीच में आपको क्या दिखाई देगा, न्यूसेलस पार्ट दिखाई देगा. ओके स्टूडेंट्स. नाउ हियर so these are the points which I have given. So now from this points you can understand these are the various points for the Anatropous ovule. Now students, these are the 7 points. From these 7 points you can write any 3 points. Okay, so any 3 points you have to write down in your journal. As per your wish, write it down any 3 points. So you will going to understand in the exam also what we will going to keep. We will going to keep this chart. With the help of this chart you have to identify. इसमें सारे लेबल हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे. और लेबल हाइड करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ओव्यूल है करके. सो दिस इज़ द एनाट्रोपस ओव्यूल. आपको आइडेंटिफाई करना है. स्पॉट पे जाके कोई डायग्राम नहीं बनाना है. जैसे मैंने आपको बोला था, स्पॉटिंग पार्ट में आपको कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. हम ये सारे लेबल क्या कर देंगे, हटा देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करने के बाद आपको लिखना है, सो दिस इज़ द ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम इज एनक्लोजेज इन द ओवरी. नाउ दिस इज़ द वन और द मेनी ओव्यूल्स इन एन ओवरी. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना है. सो दिस इज़ द VS ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. ये क्या है, VS ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है. स्पॉट F के आगे लिखना है VS ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. और उसके नीचे आपको क्या लिखना है, या 2 या 3 पॉइंट्स आपको एनाट्रोपस ओव्यूल के लिखने हैं. ओके. नाउ दिस इज़ द पार्ट एंड दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट विच इज़ फॉर द स्पॉट F विच इज़ VS ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. ओके. Thank you students.